Students, I am Kinnari Dave from MB Patel English Medium School. Today you are watching part 8 of the chapter 1 Solid State Standard 12. Children, in this part 8, I am going to teach you the non-stoichiometry defect. Yesterday, part 7, we have studied the stoichiometry defect. Defect means what? Anyhow, the arrangement of the lattice is changed, that is known as the defect. Now, in the stoichiometry defect, we have studied the 4 different types of defect. In that, the first one, it is known as the vacancy defect. The second one, it is known as the interstitial defect. That two defects are generally found in the non-ionic lattice. The third one, it is known as the Schottky defect, and the fourth one is known as the Frankel defect. The Frankel defect and Schottky defect you are finding in the ionic crystal. Now, after completion of that stoichiometry defect, students, now the time to start with the non-stoichiometry defect. Non-stoichiometry defect means what? The regular arrangement is disturbed due to any of the reason. But here you keep in your mind, students, non stoichiometry उसकी arrangement disturb हो जाती है, but electrical neutrality is not at all disturbed. Electrical neutrality is maintained. Now how it creates and how the electrical neutrality is maintained, that I am explaining you on the board. So we'll go with the non-stoichiometry defect. There are the two types of non-stoichiometry defect. One is known as the metal excess defect and another one is known as the metal deficient defect. Now in that metal excess defect, we can create the metal excess by removing the anion or creating the deficiency of anion. मतलब कि अगर मुझे मेटल का प्रपोर्शन मतलब कैटायन का प्रपोर्शन बढ़ाना है, तो मेटल का प्रपोर्शन बढ़ाने के लिए मैं कैटायन का प्रपोर्शन बढ़ाने के लिए एनायन का प्रपोर्शन कम करूंगी, तो अपने आप मेटल जो है वो एक्सेस हो जाएगा. तो एक तरीका ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, और दूसरा तरीका जो है वो मेटल एक्सेस के अंदर कैटायन जो है वो कहीं इंटरस्टिशियल साइट के अंदर जाके बैठ जाता है, उस तरह से भी वो मेटल एक्सेस में आता है. तो नाउ वी स्टार्ट विद द मेटल एक्सेस डिफेक्ट. जस्ट लुक एट द बोर्ड एवरीवन. नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट. Non-stoichiometric defect. Now here the first one, it is the metal excess. As I said students, metal excess किस तरह से हो सकता है? तो एनायन की डेफिशिएंसी क्रिएट करके. तो एनायन डेफिशिएंसी, मेटल की एक्सेस होता है एनायन को डेफिशिएंट करने के लिए भी. तो ये यहाँ पर मैं रेगुलर अरेंजमेंट ड्रॉ कर रही हूँ. प्लस माइनस कैटायन एनायन कैटायन एनायन अगेन कैटायन एनायन कैटायन. Now suppose here we are taking Na as a plus and Cl as a minus. Now student, इसके अंदर से मुझे anion को remove करना है. So anion remove करने के लिए now what I am doing here, I am adding the sodium vapor. I am just allowing the sodium vapor to enter in the lattice. So here what happens, ये जो सोडियम वेपर है वो यहाँ अंदर जैसे एंटर होगी, उसके साथ में ये सोडियम वेपर अंदर एंटर होने से उसके अंदर जो यहाँ पर आपके पास में Cl माइनस भी प्रेजेंट है,
तो वो Cl माइनस के साथ में, मतलब ये Na अंदर एंटर होने से वो Na प्लस N प्लस इलेक्ट्रॉन, इस तरह से पहला फॉर्मेशन होगा हमारा। Na वेपर अंदर ऐड करने से Na प्लस N प्लस इलेक्ट्रॉन हुआ। अब ये जो आपका Na प्लस जो बना है स्टूडेंट बाय एडिंग द सोडियम वेपर, वो यहाँ अंदर रहा हुआ कोई भी Cl माइनस के साथ में, तो ये Na प्लस अंदर रहा हुआ लेटाइस में रहा हुआ Cl के साथ में अटैच होता है और बनाता है NaCl। अब मान लो यहां से, ये मैं बताती हूँ यहाँ पर फिर से ड्रॉ करके स्टूडेंट, ये प्लस, अब ये सपोज से जो Cl है वो निकल गया यहाँ से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सपोज स्टूडेंट ये जो Cl माइनस है वो यहाँ से निकला हुआ है, तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हुई, और वो वैकेंसी जो क्रिएट हुई, या तो वो जो जगह खाली पड़ी, वो जगह को हम कहेंगे एफ सेंटर। एफ सेंटर, अब एफ सेंटर का मतलब क्या होता है? एफ सेंटर का मतलब है स्टूडेंट्स फॉर बेंजेंटर। फॉर्बेंजेंटर, एफ सेंटर का मतलब हुआ फॉर्बेंजेंटर, means this F center is giving the color to particular metal। यहां से जो सोडियम वेपर पसार करने से जो सोडियम था वो Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन बनाया। अब ये Na प्लस लटाइस में रहा हुआ Cl माइनस के साथ में जुड़ के NaCl बनाता है, और ये जो प्लेस Cl की खाली होती है उसे हम एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर का मतलब है फर्बेंजेंटर। फर्बेंजेंटर का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि इट गिव्स द कलर, means this is responsible, this F center is responsible to give to color to that particular metal। सपोज अगर हम देखते हैं तो सोडियम मेटल जो है, वैसे देखा जाए तो सोडियम इज ऑफ वाइट कलर, बट आप सबने सोडियम लैंप देखा हुआ है स्टूडेंट। सोडियम लैंप जो है वो येलो कलर की लाइट देता है। तो येलो लाइट किस तरह से होती है? जब इसके अंदर इस तरह की इम्प्योरिटी, मतलब कि उसमें अंदर से एफ सेंटर डेवलप होता है, तब जाके वो येलो लाइट देता है। सो व्हेन द एफ सेंटर इज डेवलप इन द सोडियम, it gives the yellow color, it gives the yellow color। So this is responsible, yellow color for sodium is responsible due to the F center is present in it। अब ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर जब नॉन स्टोइकियोमेट्री, मतलब कि यहाँ इसकी स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई, अरेंजमेंट में डिस्टरबेंस आ गया, पर उसके साथ में स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू the electrical neutrality is maintained। So how the electrical neutrality is maintained? यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, वो इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि Na प्लस है वो Cl के साथ में बॉन्ड बना के NaCl में कन्वर्ट हो गया। अब आपका जो एफ सेंटर पड़ा रहा वो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आके जमा हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड, electron is entered in the place of Cl माइनस। तो हो गई ना स्टूडेंट्स, जो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बैलेंस हो गई। नेगेटिव चार्ज के सामने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से ये हमारी मेटल एक्सेस, यहाँ पर रेशियो अगर हम देखें तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन का रेशियो अगर देखता है तो 1 2 3 4 एंड 5। सोडियम का प्रपोर्शन था 5, और उसके साथ में Cl देखो तो 1 2 3 4 एंड
तो 1 2 3 4 5 एंड 6। सोडियम का प्रपोर्शन जो है वो है 6 है। उसी तरह से अगर क्लोरीन का प्रपोर्शन देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो वो प्रपोर्शन था 6:6 का जब ओरिजिनल हमारे लैटाइस था तब। अब सोडियम वेपर पसार करने के बाद में यहाँ अगर हम उसका प्रपोर्शन देखते हैं तो प्रपोर्शन में क्या फर्क आया है स्टूडेंट्स, वो देखो। सो Na एंड Cl का रेशियो, Na इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। Na तो 6 का 6 ही रहा है, पर यहाँ से आपका Cl निकल गया है तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 6:5 हो गया अपने आप स्टूडेंट्स मेटल एक्सेस। इज इट क्लियर टू यू? हमने एनायन की डेफिशिएंसी क्रिएट करके मेटल को बढ़ा दिया। तो दिस इज द फर्स्ट वे टू क्रिएट द metal excess deficiency, and here the F center which is developed, it is responsible to give the color of that particular metal. उसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको NaCl का एग्जांपल लेके बताया। उसी तरह से LiCl और KCl, उसमें भी अगर हम लिथियम की वेपर पसार करते हैं, so LiCl is also giving by passing the lithium vapor in this LiCl crystal, it gives the pink color. So the question may be asked, when the normal sodium is of white color, but why it gives the yellow color, or LiCl is giving the pink color, or maybe KCl के बारे में पूछे तो it gives a violet color. तो यहाँ पर आपको ये पूरा F सेंटर, मतलब मैंने जो दूसरी जो डिफेक्ट है मेटल एक्सेस, उसमें मैंने आपको कहा इंटरस्टिशियल कैटायन। कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइड में आके बैठ जाता है। एज वी नो द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन में, कैटायन जब छोटी साइज का होता है तब ये पॉसिबल बनता है। तो अब ये दूसरी डिफेक्ट जो है उसका नाम मैं लिख रही हूँ, इंटरस्टिशियल कैटायन डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल कैटायन डिफेक्ट। अब यहाँ पर सपोज स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। ये जिंक ऑक्साइड जो है वो कोल्ड जिंक ऑक्साइड है। अब जब उसका, तो यहाँ क्या होता है, Zn+2 प्लस हाफ O2 और +2 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल है। ZnO, अब ये जो Zn है वो हॉट Zn है। स्टूडेंट ये ZnO मैंने लिया है यहाँ पर। ZnO इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किस तरह से क्रिएट होती है। स्टूडेंट यहाँ पर Zn+2 O-2 Zn+2 O-2, ठीक है। सेम वे O-2 Zn+2 O-2 Zn+2 Zn+2 O-2 Zn+2 and O-2. This is the regular arrangement of zinc oxide. अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, कोई ऐसी वजह से, कोई भी कारण से ये जो आपका Zn+2 है, जब डिफेक्ट क्रिएट होती है तो कैसे वो प्लस आयन जो है वो छोटा होने की वजह से, सपोज यहाँ से वो खाली हो गया, यहाँ पर O-2 है, यहाँ पर ये +2 है, ये -2 है, तो ये जो खाली हुआ है स्टूडेंट, वो यहाँ बीच में, यहाँ पर Zn+2 आके बैठ गया,
तो उसकी वजह से अब ये Zn+2 तो आ गया, पर यहाँ क्या है आपके पास में इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ जाता है। तो Zn+2 कैटायन की साइज छोटी होने की वजह से कैटायन जो है वो कोई ऐसा क्रिएट होने की वजह से, गर्म होने से या कुछ उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाने की वजह से Zn जो है वो Zno में से Zn+2 अपनी ओरिजिनल जगह से निकलता है और स्मॉल साइज होने की वजह से इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ जाता है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाता है। तो इसी तरह से हम इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल कैटायन डिफेक्ट ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। अब यहाँ पर जो है ये हमने जो फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो स्कॉटकी डिफेक्ट होती है उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, उसकी जो एनायन और कैटायन जो है उसकी साइज सेम होती है, पर यहाँ पर कैटायन की साइज छोटी है तो इसे हम सेमी फ्रैंकल डिफेक्ट, सेमी फ्रैंकल डिफेक्ट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि Zn+2 इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, पर यहाँ क्या होता है इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, तो इसे हम सेमी फ्रैंकल डिफेक्ट कह सकते हैं। उसी तरह से हमने जो मेटल एक्सेस में एनायन कम किया, मतलब कि कैटायन को जब बढ़ाया था हमने, एनायन डेफिशिएंसी क्रिएट किया था, तो उसके अंदर उसे हम सेमी स्कॉटकी डिफेक्ट भी कह सकते हैं। सो मेटल डिफेक्ट को, ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसे सेमी फ्रैंकल, और आगे जो हमने पढ़ा उसे हम सेमी स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ मैंने लिखा है जिंक ऑक्साइड ठंडा है और ये जिंक गर्म है। तो यहाँ एक क्वेश्चन रहेगा, जब जिंक ऑक्साइड भी, स्टूडेंट आप लोगों को मैंने जो प्रैक्टिकल करवाया था तो वो प्रैक्टिकल में आप लोग ने ड्राई टेस्ट किया था, है ना स्टूडेंट्स। कॉपर को टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया था और फिर उसको हीट किया था, उसी तरह से आपने जिंक पाउडर को भी उसमें लिया था तो उसको हीट किया था। तो कहीं कहीं ऐसा आया था स्टूडेंट्स के हीट करने से पाउडर जो है वो उसका कलर चेंज हो जाता है। आपने कॉपर का कलर देखा हुआ था स्टूडेंट्स, तो कॉपर एक्चुअली जो है वो ब्लू कलर का होता है, पर जब उसको ड्राई टेस्ट करते हो तो वो आपको व्हाइट दिखाई दिया था। ये अगर याद है आप लोग ने 11th में ये प्रैक्टिकल किए हुए थे। तो अब यहाँ भी इसी तरह से है स्टूडेंट्स कि ZNO जो है वो ZNO जनरली जब गर्म होता है, सो Zn+2 जब गर्म होता है तो वो येलो कलर का होता है। Zn+2 जब गर्म होता है तो येलो कलर का होता है, पर जब वो कोल्ड ZNO है, मतलब ZNO के अंदर जब वो कोल्ड है तो उसका व्हाइट कलर होता है, ये व्हाइट कलर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट, तो ये है उसका परमानेंट कलर नहीं है, जब वो जिंक को गर्म करेंगे, ड्राई टेस्ट करेंगे, तभी जाके वो येलो कलर देता है। अपने आप फिर से जैसे ठंडा आता है फिर अपना व्हाइट कलर आ जाता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है उसकी वजह से। जबकि हमने डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो देखा, या हमने एनायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो देखा, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का या लिथियम क्लोराइड का जो कलर है वो उसका परमानेंट कलर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एफ सेंटर परमानेंटली डेवलप हो गया है, तो वो जो क्रिएट्स है कलर्स का, वो कलर एफ सेंटर की वजह से है। इसीलिए वहां जो एनायन डेफिशिएंसी हमने क्रिएट किया था उसकी वजह से मेटल एक्सेस क्रिएट हुआ और वहां एफ सेंटर क्रिएट हुआ, तो सोडियम का येलो कलर वो परमानेंट कलर होता है। सेम वे पोटेशियम जो है वो वायलेट कलर वो परमानेंट देता है, बट हियर इट इज नॉट अ परमानेंट कलर। व्हेन इट इज हॉट इट गिव्स अ येलो कलर एंड व्हेन इट cool down it gives again the white color. Hope so students you understand this interstitial cation defect also very clearly. Now
The next topic for the non-stoichiometry defect is metal deficiency defect. अब तक हमने जो पढ़ा था मेटल एक्सेस के अंदर हमने एनायन को कम किया तो अपने आप मेटल बढ़ गया। दूसरा हमने इंटरस्टिशियल साइट के अंदर कैटायन को फिट बिठा दिया। तो ये अब हमने मेटल एक्सेस के हेडिंग के अंदर पढ़ा। अब हमें पढ़ना है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। स्टूडेंट्स राइट डाउन फास्ट in your notebook.